આજે 4 ડિસેમ્બરે નેવી ડે છે, ત્યારે પોરબંદરમાં નેવીની કામગીરી અંગે યોજાયેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નેવીની તાકાત અને વિવિધ કામગીરી અંગે મીડિયાકર્મીઓને માહિતગાર કરાયા હતા. દર વર્ષે 4 ડિસેમ્બરે ભારતમાં નૌકાદળ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 1971માં જ્યારે બાંગ્લાદેશની આઝાદી માટે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, તે યુદ્ધની ઘટનાઓમાં 4 ડિસેમ્બરે ભારતીય નૌકાદળે પાકિસ્તાનના કરાંચી નેવલ બેઝ પર હુમલો કરીને તેનો નાશ કર્યો હતો. આ દિવસ તેની સફળતાની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. પોરબંદર ખાતે યોજાયેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ગુજરાત નેવલ એરિયા સમીર સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું કે નૌસેના કોઈપણ દુશ્મન સામે લડવા સક્ષમ છે. ભારતીય નૌસેના પાસે કુલ 150થી વધુ જહાજ, 500થી વધુ એરક્રાફ્ટ અને સ્પેશિયલ ફોર્સ છે. સમુદ્રમાં જહાજ અને બોટ ઉપરાંત એરક્રાફ્ટ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ અને બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતનો 1600 કિલોમીટર દરિયા કિનારો પાકિસ્તાનની બોર્ડરથી નજીક હોવાથી વધુ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. ત્યારે અહીં નેવી હંમેશા સતર્ક રહે છે. દેશની મુખ્ય ઇકોનોમી સમુદ્ર માર્ગ સાથે સંકળાયેલ છે. મહત્વના ઉદ્યોગો અને રિફાઇનરી પણ દરિયાકાંઠે છે, જેથી સમુદ્ર માર્ગને સુરક્ષિત રાખવા નૌસેના જહેમત ઉઠાવે છે. દુનિયાની મુખ્ય 4 નૌસેનામાંથી એક ભારતની નૌસેના છે. દેશને સુરક્ષિત રાખવા તથા માલસામાન સુરક્ષિત રીતે પહોંચે તે માટેની નેવીની જવાબદારી મહત્વની છે. નૌસેનામાં મોટાભાગના જહાજ અને બોટ ભારતીય બનાવટના છે. માત્ર શિપ જ નહીં, તેમાં રાખેલ હથિયાર અને સેન્સર પણ મેક ઇન ઇન્ડિયા છે. છેલ્લા થોડા સમયથી પાકિસ્તાન દ્વારા ડ્રગ્સ એક્સપોર્ટ અને હ્યુમન ટ્રાફિકિંગના બનાવો વધ્યા છે, જેનાથી નૌસેના વાકેફ છે અને આ ગતિવિધિ પર બાજ નજર રાખી પાકિસ્તાનના મનસૂબાને નષ્ટ કરવા હંમેશા તત્પર રહે છે. તેના માટે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો કોસ્ટગાર્ડ સાથે સંકલન કરી અને કામ કરે છે. ગત ફેબ્રુઆરીમાં નેવીના INS તબર જહાજ દ્વારા સમુદ્રમાંથી 3000 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડવામાં આવ્યું હતું. સમુદ્રમાં નેવી, કોસ્ટગાર્ડ, કસ્ટમ, પોલીસ સહિત આર્મી, એરફોર્સ સંકલનમાં રહીને કામ કરે છે. નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ. जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, तो दोनों सी बोर्ड पे, ईस्टर्न सी बोर्ड में भी एक्शन हुआ था, वेस्टर्न सी बोर्ड में भी एक्शन हुआ था. ईस्टर्न सी बोर्ड में भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत था, और जो एक्शन हुआ था ईस्टर्न सी बोर्ड में ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, आप लोग जानते हैं कि उस एक्शन के वजह से बांग्लादेश ने जन्म लिया है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. That happened because of the action on the eastern seaboard and also a lot of action on the western seaboard. नेवी डे खास करके हम इसके लिए कमेमोरेट करते हैं कि 4 दिसंबर को नेवी के मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को नष्ट कर दिया. ये जो हम जहाज़ देख रहे हैं, इसी के जैसे पहले जो इससे पहले जो क्लास था मिसाइल बोट्स जो कहते हैं, ये कराची तक गए, पूरा कराची हार्बर डिस्ट्रॉय किया, उनके बड़े बड़े युद्धपोत को डिस्ट्रॉय किया. तो 4 दिसंबर इज़ टू कमेमोरेट द अटैक ऑफ कराची एंड ऑल्सो द होल नेवी वीक टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 विच लेड टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. सर, जो गुजरात का जो पोस्ट है वो पूरा हमारे जो पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, तो सर किस तरह से हमारी जो नेवी है वो सक्षम है इसके लिए? बहुत सक्षम है. ये देख रहे हैं आप यहाँ देखिए, पूरा ट्रेड, आगे देखिए बड़े मर्चेंट शिप, छोटे नाव, पूरा देश का इकोनॉमी समुद्र के तरफ से आता है. 90% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय ट्रेड. वैल्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज फैसिलिटेटेड बाय सी बोर्न ट्रेड. ये हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट है. तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं और इंटरेस्ट हैं. थ्रेट से है कि हाँ, पाकिस्तान के पास में हम हैं, 1600 किलोमीटर के आसपास हमारा कोस्ट लाइन है, बहुत सारे आउटलाइन आइलैंड्स हैं, लैंड बॉर्डर भी 530 किलोमीटर का पास लैंड बॉर्डर भी गुजरात स्टेट का पाकिस्तान के साथ है. 26/11 में क्या हुआ था आप जानते हैं, पुलवामा में क्या हुआ था आप जानते हैं. टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, किस तरफ से पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, हम सब लोग जानते हैं. तो
नेशन को सिक्योर करना, नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करना, हमारे सिटीजन्स को सिक्योर करना, ये नौसेना की जिम्मेदारी है। पूरा तेल सी रूट से आता है। गल्फ ऑफ कच्छ में आप जानते हैं कितने VLCC है, टैंकर्स आते हैं, सिंगल बॉय मूरिंग में आते हैं। रिलायंस का इतना बड़ा रिफाइनरी है वहाँ, और भी पाइपलाइंस है। ये सब को प्रोटेक्ट करना नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेवी की जिम्मेदारी है। ये जो ट्रेड आता है ये नहीं है, खतरा नहीं है। दुनिया भर से ट्रेड आता है। पर्शियन गल्फ से ऑयल निकलता है। पर्शियन गल्फ में क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है आप जानते हैं। पायरेसी में गल्फ ऑफ एडन में, सोमालिया में जब पायरेसी हुई थी, और अभी भी हो रही है अनेक जगह में पायरेसी। ये सब थ्रेट्स को से सुरक्षित रखना कि हमारा व्यापार आराम से सुरक्षित भारत पहुँचे, ये हमारा काम है। सर, खास करके नौसेना कितनी ताकतवर है, कितने जहाज है, कितने एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में ज़रा बताइए हम लोगों को। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बहुत कम सीमा में नौसेना प्रदर्शित है, क्योंकि हमारे खास बेसिस जो है नौसेना के वो है बॉम्बे में, कारवार में, विशाखापट्टनम में। नौसेना में 150 से ज़्यादा जहाज है, 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी सबमरीन्स, मार्को स्पेशल फोर्सेस। दुनिया के 3-4 सबसे बड़े नौसेना में से भारतीय नौसेना है, ठीक है। और ये पूरी नौसेना जो हमारी है, ये हमारी आत्मनिर्भर भारत के वसूल पे बनी हुई है। 43 ships are presently being built in various shipyards across the country। इस साल आपने देखा आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीचों बीच INS विक्रांत कमीशन हुआ है। तो नेवी के जितने जहाज हैं मैक्सिमम मेड इन इंडिया है, मैक्सिमम आत्मनिर्भर भारत के अंदर बने हैं। नॉट ओनली वॉरशिप्स, उन पे जो हथियार होते हैं, सेंसर होते हैं, सब आत्मनिर्भर भारत से बने हैं। सर अभी जो MOU हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी और नेवी के बीच में, हाँ। तो क्या है? तो क्या हुआ कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी जो एयरपोर्ट है यहाँ पोरबंदर में, सिविल एयरपोर्ट है, और अब इसके बाद आप लोग जाओगे वहाँ हमारे नेवल एयर इंक्लेव में, तो ये हमारे MOU ये बना है कि हमारा फुल अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ कि जब भी दिन रात हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, पक्का हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे ऑफिसरान हैं वो ATC टावर में भी कंट्रोल करते हैं। हमारे ऑफिसरान हैं, सेलर्स हैं जो एयरक्राफ्ट को मैन करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो दिन या रात कभी भी हमें वो एयरपोर्ट यूज़ करना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैरीटाइम सर्वेलेंस, बाहर जाके देखना कि ओशन में कौन है, समुद्र में कौन है, वो सही बंदा है, गलत बंदा है, किस कारण से वहाँ है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका ये मतलब है कि कौन है, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है। आप ये देख रहे इतने सारे लोग, सबकी रोज़ी रोटी है इसमें समुद्र में, कि ये बंदा जो है एट सी सही है, हमारा है या दुश्मन है। इसलिए दिन रात हमारे एयरक्राफ्ट, आप जाएंगे नेवल एयर इंक्लेव में, आप देखेंगे डॉनियर एयरक्राफ्ट, हेरॉन एयरक्राफ्ट, जो मैन होते हैं एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, दोनों वहाँ हैं। सर अभी जो नेवी डे की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं पोरबंदर समेत, सर किस तरह से सर पूरा ये सेलिब्रेशन करेंगे पूरा नेवी डे का? नेवी डे में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन तो आप लोग आए होंगे, आप ही लोग सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है कि जो सेलिब्रेशन है हमारा यहाँ, आप लोग बताओगे भारत के नागरिक को कि ये सब हो रहा है, हम लोग हैं यहाँ। ये तो एक हफ्ता है साल में कि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, नहीं तो 365 डेज एक्शन तो चल ही रहा है। और नेवी जो है वो है आम नागरिक के लिए, जनता और सरकार और सेना की सक्षम भागीदारी से ही देश सुरक्षित रहेगा, ये मेरा मानना है। तो सॉरी सर, ये अभी नेवी का जो सेना चल तो किस तरह से रहेगी और यहाँ पर कितने फौजी मिलेंगे? जो जैसे कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं ना,
पहले भी रिक्रूटमेंट करते आ रहे थे, आगे भी रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है कि जैसे कि पहले आते थे और सीधे नेवी में भर्ती होते थे, अभी ये सोचिए कि जैसे इंटर्नशिप होता है, वो आएंगे 4 साल के लिए, देखेंगे कि उनका जमता है नहीं जमता है, फौज में सर्विस करेंगे, देश के लिए सुरक्षा के लिए सर्विस करेंगे, देश की सेवा करेंगे, और उसमें उनकी बहुत ट्रेनिंग होगी, डिसिप्लिन मिलेगा उनको, स्किल्स मिलेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा उनका। तो ये लोग आएंगे, बच्चा पार्टी बहुत जोश में आएंगे। और नेवी में आपको एक चीज़ और बताऊँ, खास कर अग्निवीर जो होंगी, लेडीज़ अग्निवीर भी होंगी, विमेन एंड मैन, यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स विल बी कमिंग, दे विल वर्क, हमारे साथ काम करेंगे। और फिर उनमें से 4 साल बाद कोई सिविल में काम करना चाहता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहता है, या फौज में रहना चाहता है, फौज में। सर खास करके नेवी आर्मी जो एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से करते हैं? अगर कोई दुश्मन हमला करे तो किस तरह से हम पूरा उसके सामने लड़ेंगे? तो ये बहुत ही आपने गहरा सवाल पूछा, पूरी रणनीति तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, बट जो है आजकल के ज़माने में इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस, जो मैं कह रहा था, देश की इकोनॉमी ये नेवी अकेली संभाल थोड़ी रही है, कोस्ट गार्ड भी है, स्टेट पुलिस भी है, स्टेट मैरीटाइम पुलिस भी है, कस्टम्स भी है। वैसे ही मेन कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और कोस्ट गार्ड भी नेवी के अंडर आएगी वॉर के टाइम। तो हम सब लोग मिल के काम करेंगे। आजकल के ज़माने में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है युद्ध में सक्षम होने के लिए। सर पाकिस्तान हमसे यहाँ थोड़ा ही नज़दीक है, तो बार बार पाकिस्तान से ड्रग्स की यहाँ पर डीलिंग होने दिखता है, तो नहीं किस तरह से काम कर रही है? तो ये हम ट्रैक कर रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ और कोस्ट गार्ड के साथ हम ट्रैक कर रहे हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एक तरह से नीति है कि एक्सपोर्ट टेररिज्म, एक्सपोर्ट ड्रग्स विल फ्यूल गन रनिंग विल फ्यूल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये हम फुल्ली वाकिफ़ हैं इनके स्ट्रेटजी से, और उसको एड्रेस करने के लिए हम फुल तैयार हैं। आपको शायद याद रहेगा INS तबर, शायद इस साल फरवरी का महीना था, 3000 करोड़ रुपए का ड्रग हॉल पकड़ा था। और भी ड्रग्स हॉल हुए, हम उसको कहते हैं ANO ऑपरेशन, एंटी नारकोटिक ऑपरेशन। सर हम नेवी वीक मना रहे हैं, जो सिविलियन है उसको अब क्या संदेशा देना चाहिए? क्योंकि खास करके लोग नेवी से ज़्यादा से दूर रहते हैं, पानी में रहते, ये ज़मीन पे रहते, तो अब क्या संदेशा देना चाहते हैं जो नेवी जो काम कर रही है उसके बारे में? हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि ये नेवी आपकी नेवी है, और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और आइए जानिए हमें, इसलिए हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करते हैं, क्रॉस कंट्री, ट्री प्लांटेशन, चिल्ड्रन आते हैं, स्कूल चिल्ड्रन आते हैं। तो ये जहाज़ देखिए, आप लोग आए हैं, आप लोग के माध्यम से हम पूरे देश को अपने जहाज़ दिखा पाएंगे। ये जो नेवी है आपकी नेवी है, ये हमारा संदेश है हमारे नागरिक हैं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार, वेलकम ऑन बोर्ड स्माइल शिप। और पहले मैं आप सब लोग को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ हमारी टीम से। तो मैं हूँ रियर एडमिरल समीर सक्सेना। अभी ट्यूसडे को मैं टेक ओवर किया हूँ एज फ्लैग ऑफिसर गुजरात एरिया। इससे पहले मैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट था। हमारे जो वेस्टर्न फ्लीट के जहाज़ है मुंबई में, उनके अधिकारी में था। और मेरे साथ यहाँ है हमारे नेवल ऑफिसर इंचार्ज गुजरात, कॉमोडोर विपिन बिश्नोई। और जो शिप्स आप देख रहे हैं, सबके कमांडिंग ऑफिसर्स हैं हमारे साथ। और ये सब शिप्स को आप प्लीज़ विज़िट करिए और देखिए। ऑल्सो कैप्टन अंशुल किशोर